अगस्त को श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली के राज्यसभा में न्यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने के किसी प्रस्ताव से इनकार और इसके विरोध में 4 अगस्त को दिल्ली में श्रम मंत्रालय के सामने एनएसी के राष्ट्रीय नेताओं के प्रदर्शन में पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और महिला पेंशनरों के साथ की गई बदसलूकी के विरोध में पेंशनरों में रोष व्याप्त है। सबको समझ में आ गया है कि सभी सांसद और मंत्री खाली झूठे आश्वासन दे रहे हैं और गूंगी बहरी सरकार ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय के इशारे पर वृद्ध पेंशनों पर जुल्म ढा रही है। इसीलिए 1 अगस्त से 15 अगस्त तक आक्रोश पखवाड़े में देश के कोने कोने में पेंशनर जबरदस्त प्रदर्शन और मंत्रियों अधिकारियों से बहस कर रहे हैं, क्योंकि उनको कई बार पहले ज्ञापन दिए जा चुके हैं। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, हर राज्य से रोज प्रदर्शन की खबरें मिल रही हैं। उन्हीं में से कुछ आपके लिए प्रस्तुत की जा रही हैं। हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। अगस्त को आक्रोश पखवाड़े की शुरुआत कोलकाता से हुई, जिसमें एक विरोध सभा आयोजित की गई और विभिन्न डिपार्टमेंट के ईपीएस 95 पेंशनर बड़ी संख्या में शामिल हुए। बाद में धिक्कार दिवस आयोजित कर नॉर्थ 24 परगना, वाराणसी, साउथ 24 परगना, अलीपुर, सिलीगुड़ी, कूच बिहार, दुर्गापुर में ज्ञापन सौंपे गए। आक्रोश पखवाड़े के दौरान 4 अगस्त को एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी और राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राजावत पेंशनरों को लेकर श्रम राज्य मंत्री के बयान का विरोध करने दिल्ली में श्रम मंत्रालय पहुंचे तो पुलिस ने उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया। महिला पेंशनरों के साथ बदसलूकी की गई। काफ़ी देर धक्का मुक्की, नारेबाजी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर वहां से 30-35 किलोमीटर दूर ले जाकर देर शाम तक बैठाए रखा गया। Pensioners hurt by the incident of 4th August began to express their anger across the country. Demonstrations were held in Andhra Pradesh, Madanpalli, Punganur, Visakhapatnam, etc. Vigorous demonstrations took place in Mehboob Nagar, Nizamabad, Karimnagar and Hyderabad, etc. in Telangana. Rallies were taken out on the streets and memorandum were given. कैसा लेंगे कैसा लेंगे कैसा लड़ेंगे कैसा लड़ेंगे कैसा लड़ेंगे कैसा लड़ेंगे आवाज दो आवाज दो आवाज दो एनएसी जिंदाबाद। Demonstrations were held in Karnataka's Bangalore, Shimoga, Hubli, Raichur, Devnagara, Bellary, etc. expressed their protest in front of EPFO Commissioner in Bangalore, in which the anger of the pensioners were clearly visible. Sir, our another request is, whatever the act of police has been taken place from a leader, we condemn. I don't know whether you support it or not. As a human being, we should also condemn it. Because we are the old people, we are the pensioners, we are fighting for our justice. It is not that any halla-gulla way of doing it. Do we agree that such things should take place on senior citizens of India? No, it should not. Yes, that is our this thing. Number one. Number two, Rameshwar Teli, whatever the statement he has given in the parliament, there is no discussion taken place on minimum pension. I hope for this office, we have come not less than 7-8 times, submitting the same memorandum. We don't know whether you people have forwarded it or not, how the government is not knowing. Seriousness has to be created. Our fundamental demands has to be resolved. The only personal request, sir, not only you, your relatives, your friends may be suffering from the same thing. Everybody, I am telling that. We all contributed for the development of nation. We need it, and we are asking for a respectable pension, not a lavish pension like that. I hope you understood our problem. Yes, I you understood definitely give a recommendation. Forward it, sir. Forward it with our recommendation. This is the representation of KSRC and BMTC, where we have submitted our memorandum to the Minister Bhupendra Yadav, Labour and Employment. महाराष्ट्र के पेंशनरों में कमांडर साहब के साथ दिल्ली में पुलिस के अमानवीय व्यवहार के कारण बहुत गुस्सा है।
पेंशनरों ने नांदेड़, छत्रपति संभाजीनगर, अहमदनगर, बसमत, हिंगोली, पुणे, सतारा, परभणी, नंदुरबार, कोपरगांव, श्रीरामपुर, आबेजोगाई, जलगांव, जालना, पिंपरी, चिचवड़, धुले, थाने, धाराशिव आदि में प्रदर्शन किया। बुल्डाना में चल रहे क्रमिक अनशन में कमांडर साहब की 81 वर्षीय और राजावत जी की 93 वर्षीय माताजी भी शामिल हुईं और आक्रोश रैली में शिरकत की। हम तुम्हारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश की आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश की आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश की आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। स्थान की आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। स्थान की आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली की आगे बढ़ो। हम गुजरात के भावनगर, हिम्मतनगर, बड़ोदरा, कच्छ, भुज में पेंशनरों ने प्रदर्शन किए और ज्ञापन सौंपे। उत्तर भारत में भी पेंशनरों में काफ़ी रोष व्याप्त है। छत्तीसगढ़ में पेंशनरों ने ईपीएफओ पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। न्यूनतम पेंशन न बढ़ाए जाने पर रोष व्यक्त किया। बिहार के पटना और कटिहार में ज्ञापन सौंपे गए। पंजाब में भी विरोध सभाएं हुई। हरियाणा के यमुनानगर में विरोध कर ज्ञापन सौंपा गया और रैली निकाली गई। धरना दिया। हमारी पेंशन के लिए संसद भवन चल रहा था तो पुलिस वालों ने उनके साथ बहुत ज्यादती करी, उनको कॉलर खींचा। आप लोगों को वीडियो कॉपी होगी, उनका कॉलर खींचा तो उसके साथ बदतमीजी। जो आदमी अपनी सर्विस में जिंदगी भर उसने देश की सेवा करी एज ए कमांडर, तो उसके बाद रिटायरमेंट होने का वो हम लोगों की सेवा पे लगा हुआ है, मजदूरों की पेंशन के लिए लगा हुआ है। और उस आदमी के साथ इन्होंने इतनी सारी बदतमीजी करी है तो उसको हम सब सेम कहेंगे। बोलो सेम एक नारा रहेगा। बोलो का रावत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। रावत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। रावत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में प्रदर्शन और रैली निकाली गई। सांसद को घेरकर उनसे न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए बहस की गई। सांसदों ने भी उठाया, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं तो इसके लिए प्रोसेस में और जल्दी होगा मुझे लगता है। ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा से कह रहे वही जो असंभव काम था वही करा दिया आपने। इनका हो भी इंतजार हमारी तरफ सुनो। अच्छा सुलटते जा रहे हैं हमारे लोकसभा में नहीं और बाकी सब जगह हो गया और मैंने नहीं। सर आप आपका प्रमोशन हो गया, आप मेरे भी स्ट्रॉन्ग हो गए। हम आपको चुनौती देते हैं, या तो हमारी मांगों को आप मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं सर, हम तथ्य और प्रमाण के साथ प्रस्तुत करें। जब मैं इतना बोल रहा हूँ 8 लाख करोड़ रुपए है सालाना, आप गलत थोड़ी। मैं आपके राज्यसभा में मंत्री जी कह रहे हैं रामोशी जी के लिए, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप गलत थोड़ी कहेंगे क्या? फिर जब पैसा है सर, हमारा पैसा हम मांग रहे हैं, भारत सरकार के ऊपर एक नए पैसे की भी भार नहीं बढ़ रहा है, फिर हमारा काम होने में डिले क्यों हो रहा है? और आपकी बात वापस हो। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री आवास के लिए बहुत बड़ी रैली निकाली गई। पुलिस प्रशासन के भारी बंदोबस्त में बैरिकेड्स लगाकर रैली को मुख्यमंत्री आवास जाने से रोक दिया गया। तो प्रदेश के पेंशनरों ने वहीं धरना देकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। रहेंगे भाई भाई। कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तर प्रदेश में 8 अगस्त को सभी ईपीएफओ और जिलाधिकारी ऑफिस में श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन देकर विरोध जताया गया। लखनऊ, कानपुर, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बरेली, प्रयागराज, आजमगढ़, गोरखपुर आदि जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए और ज्ञापन सौंपे गए।
10 अगस्त के लखनऊ में विरोध सभा और आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश से अनेकों विभागों के पेंशनर शामिल हुए। सभा के बाद आक्रोश रैली उत्तर प्रदेश विधानसभा की ओर कूच करी। आजकल विधानसभा का सत्र चलने के कारण आसपास भारी पुलिस बल का बंदोबस्त था, जिसके कारण विधानसभा के पास काफ़ी देर तक नोकझोंक हुई और नारेबाजी होती रही। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने लिया। वही देश पे राज करेगा। भाई 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 आगे ले चलो, आगे ले चलो। भाई भाई वही देश पे राज करेगा। वही देश पे राज करेगा। थोड़े स्टिल भी लेते हैं। क्या मांग रहे हैं? ताकि हमारी चिकित्सा सुविधा हो जाए और मेरी पेंशन जो केवल 7,500 मांगे हैं प्रति वो प्रदान की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री की जान ले, अगले चुनाव में हम वोट की चोट देंगे और यही मेरा नारा है। भाई भाई अभी हम शांतिपूर्ण से ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। अब हम उग्र रूप ले लेंगे और रेल रोको आंदोलन करेंगे, रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। इनके सदन में विधानसभा के जो प्रेसिडेंट का काम करेगा वही देश में राज करेगा। वही देश में राज करेगा। वही देश में राज करेगा। पेंशनरों की समस्या हल करने में सरकार की उदासीनता और पेंशनरों के विरुद्ध दमनकारी नीति के विरोध में पेंशनरों में रोष बढ़ता जा रहा है, जिससे धीमे धीमे स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। हालांकि स्थायी समिति के सदस्य और देहरादून से राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल, जिन्होंने देहरादून में एनएसी के अधिवेशन में कहा था कि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट फाइनल होने से पहले कमांडर साहब आपको बुलाया जाएगा। उन्होंने 3 अगस्त को संसद भवन में कमांडर अशोक राउत से मुलाकात के दौरान कहा कि 29 अगस्त को संसद की स्थायी समिति की न्यूनतम पेंशन पर बैठक है, जिसमें आपको बुलाया जाएगा। पर पेंशनर अब नेताओं की बातों पर जल्दी विश्वास करने वाले नहीं। देश भर में जब तक ज़बरदस्त आंदोलन नहीं होंगे और वोट की ताकत का एहसास नहीं कराया जाएगा, तब तक सरकार के कानों पर चू नहीं रेंगेगी। आप भी आंदोलनकारी साथियों का हौसला बढ़ाएं और वीडियो के अंत में घंटी जरूर बजाएं ताकि सोती हुई सरकार जागे।